today's online session. Today we are going to continue with the chapter that is Indian economy's development from 1950 to 1990. That is the development during 5-year plans. During this we have done already development of agriculture, development of industry, and now we are going through that is foreign trade policy of India during these 5-year plans. First of all, what is foreign trade? Key of foreign trade. Foreign trade means it's the trade of goods of your country, the goods produced domestically with the rest of the world. That is buying and selling of the goods. What you have better quality, you send to the outsiders, and what better quality and cheap goods they are available, you can buy from them. That is what is the foreign trade. Actually, with the foreign trades, you can produce those goods better which are cheap or which cost of production is less for the domestic industry, and same way you can buy better quality goods at cheap rate from the other countries. This is how the global economy survives. So with this, because as a domestic country you consume a lot of goods which all of you cannot produce, some you have to import and some you can export. So foreign trade is importing or exporting goods. Import means the demand of domestic demand of goods produced by rest of the world, and export means demand of domestically produced goods by the rest of the world. I will repeat here. Import means domestic demand of goods produced by the rest of the world, and export means demand of goods domestically produced by rest of the world. बाहर वाले सारी चीज़ां दी demand, that is export. So the foreign trade means has three main direction, that is one is volume, another is direction, and third is the composition. Volume means size, किन्ना value दा, किन्नियां चीज़ां तुसी import export कर रहे हो. Second is composition, किस तरह दियां चीज़ां import या export कर रहे हो. Composition एक चीज़ तो याद होएगी कि when we done the chapter Indian economy on the eve of independence. Earlier India was exporting so many goods, but ultimately it became exporter of raw materials, right? But this changed during this time period कि raw material दी जोड़ी export सी या agriculture चीज़ां दी export सी, वो during this time period 1950 to 1990 fall कर गई कि दूजे पासे जड़ियाँ produced goods का export सी या manufactured goods की जड़ा export सी वो थोड़ा increase हो गया during this planning period. Then is the direction of the trade कि असी किन्ना countries नाल trade कर रहे हैं, साडा trade किस side ते जा रहा है. If you remember कि monopolist जड़ा trader सी साडे नाल वो Britain सी, because they were our colonial ruler. But now during this time period our export direction changed, not to Britain but USSR and Eastern Europe, and later on it also goes to USA as well as the West Europe. So we were also trading in different directions. So what was this trade policy during this time period, that is 1950 to 1940. So this during till 7th 5-year plan, 7वें plan तक इंडिया ने जड़ी पॉलिसी अपनाई, दैट वाज नोन एज इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी, या दा दूसरा नाम है इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी. इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी. इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਬਾਹਰੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨਾ ਹੈ with the goods produced domestically. ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨਾ ਹੈ. that is what is meant by import substitution or inward looking policy, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, that is be Indian buy Indian, कि वो चीज़ां खरीदो जो इंडिया च बन रही हैं. This is what they are saying, आत्मनिर्भर.
कि try to use the goods which are produced in India. Obviously ये चीज़ां तुसीं वो यूज़ करोगे तो तुहाडी कंट्री का जिहड़ा डोमैस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट है, इंडस्ट्रीयल बेस है, वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो तुहानूं बाहरों चीज़ां इंपोर्ट करन दी लोड़ नहीं पएगी। सो दिस इज़ वॉट इज मीनस। इहदा एग्जाम्पल ये है कि जे व्हीकल्स असीं बाहरों मंगवा रहे हैं तो असीं व्हीकल्स बाहरों ना मंगवाइए, उन्होंने अपनी कंट्री के अंदर बनाने की कोशिश करिए। जिहड़ी टैक्नोलॉजी चीज़ां असीं बाहरों मंगवा रहे हैं उन्होंने असीं अपने कंट्री के अंदर बनाने की कोशिश करिए। सो पहली चीज़ कि इस इंपोर्ट सबस्टिट्यूशन दी लोड़ ही क्यों पई, क्योंकि जदों असीं चीज़ां इंपोर्ट नहीं करांगे ऑबवियसली साडी डिवेलप कंट्री ने जिहड़ी चीज़ां बना रहे हैं उन्हां ते साडी डिपेंडेंस घट जाएगी, सानू उन्हां ते ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होना पएगा। दूजी गल, जदों असी चीज़ां इंपोर्ट करांगे उहदे नाल साडा जिहड़ा फॉरेन एक्सचेंज है वो सेव होएगा, सानू पैसे ज़्यादा नहीं खर्चने पैणगे। जिवें गवर्नमेंट इंपोर्ट गोल्ड बिल जिहड़ा इंपोर्ट गोल्ड है घटा रही है, गोल्ड का इंपोर्ट करने का सरकार को पैसे घट खर्चने पै रहे, तो सरकार का जो फॉरेन एक्सचेंज है वो उत्ते सेव हो जाएगा। तीसरा ये है कि कंट्री का इंडस्ट्रीयल डिवेलपमेंट जोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, इंडस्ट्रीयल बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तीजा ये अपनी कंट्री चीज़ां बढ़नगियां, जिन्नियां चीज़ां ज़्यादा बढ़नगियां उन्नियां ज़्यादा इंडस्ट्रीज, उन्नियां ज़्यादा नौकरियां, उन्नी ज़्यादा इंप्लॉयमेंट। ये जिहड़ा इंपोर्ट सबस्टिट्यूशन की पॉलिसी है ये ट्राई टेस्टेड सी, बिकॉज बहुत सारी कंट्रीज़ ने इनू यूज़ करके ये प्लान ये अपनी कंट्री से डिवेल्प किया। एग्जाम्पल्स लाइक ब्राज़ील, घाना, दे आर स्मॉल कंट्रीज बट दे डिवेल्प ओनली ऑन दिस बेसिस ओनली, दैट इज़ इंपोर्ट सबस्टिट्यूशन। इंडिया ने ये जिहड़ा रिप्लेस किया इंपोर्टेड गुड्स विद द डोमैस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स, इनू 3 फेजेस किया। पहला फेज सी असी कंज्यूमर गुड्स जिहड़ियां सी वो अपने घर बनानियां शुरू कीतियां, कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स कह लो, जिस तरह टीवी सी। दैन अज तो नो डाउट इंटरनेशनल ब्रांड्स सानू अवेलेबल ने, बट उस टाइम दे विच ओनली जिहड़े इंडिया दे विच ब्रांड्स बड़े सन उन्हां दे ही टैलीविजन, रेडियोज़ या ये चीज़ां अवेलेबल होंदियां सन। उस तो बाद इट वॉज कैपिटल गुड्स, मशीनरी, वड्डियां चीज़ां, वो चीज़ां सरकार ने इंडियन गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रीज लगाइयां कि उन्हां चीज़ां की प्रोडक्शन अपनी कंट्री की जा सके। तीसरा सी टेक्नोलॉजी, कि जिहड़ी टेक्नोलॉजी असी बाहरों इंपोर्ट कर रहे हैं असी उन्होंने अपने कंट्री च बनाने की कोशिश करनी है। शायद नासा दी जिन्नियां भी अज तक उन्होंने काम किए वो शायद इसे राह दे विच सी कि अगे असी सैटेलाइट लॉन्च करने लिए बाहर जाते सी, ते अज इंडिया दे विच बहुत सारी कंट्रीज अपने सैटेलाइट लॉन्च करन आते हैं, बिकॉज उन्होंने इतों ये चीज़ कॉस्ट उन्होंने घट पैंदी। सो दीज वर द 3 फेजेस जिहदे थ्रू उन्होंने इंपोर्ट सबस्टिट्यूशन पॉलिसी नूं अडैप्ट किया। पहले कंज्यूमर गुड्स, दैन कैपिटल गुड्स एंड दैन द टेक्नोलॉजी। सो इस चीज़ां दे नाल इन्हां नूं ये जिहड़ी पॉलिसी सी इंपोर्ट सबस्टिट्यूशन इन्हां 3 फेजेस च कीती, और इस पॉलिसी का सब तो बड़ा एक मेन मोटिव से इनू अप्लाई करना, और इस नू अप्लाई किया गया थ्रू कोटा एंड टैक्स। कोटा का मतलब होंदा है तुसी जिहड़ियां चीज़ां बाहरों मंगवा रहे हो ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾइज स्पैसीफाई कर देना कि इस तो वध चीज़ां तुसी नहीं मंगवा सकते। किसी चीज़ का कोटा फिक्स करना, बिकॉज नंबर ऑफ गुड्स, द वॉल्यूम ऑफ गुड्स यू आर इंपोर्टिंग विल नॉट एक्सीड बाय दिस, दैट इज़ द फिक्सिंग ऑफ कोटा। सेकेंड इट वॉज बाय टैरिफ्स। टैरिफ इज़ अ टैक्स जिहड़ा इंपोर्टेड गुड्स से लगन दे नाल उन्हां दी जिहड़ी कॉस्ट है, प्राइस है, उन्होंने डोमैस्टिक मार्केट इनक्रीज कर दिंदा, उहदे नाल इंपोर्टेड गुड्स महंगियां हो जांदियां ते डोमैस्टिक गुड्स उहदे मुकाबले चीप लगदियां। जिस तरह सरकार गोल्ड ते इंपोर्ट ड्यूटी लगा रही है, सो अगे ये टैरिफ जिहड़ा सी सिर्फ गोल्ड ते नहीं सी, हर तरह की जिहड़ा कंज्यूमर गुड्स है, जिहड़े बड़ियां होईयां कंज्यूमर गुड्स है उत्ते लगदा हुंदा सी। शायद वो टेक्नोलॉजी है, चाहे कोई इलैक्ट्रॉनिक्स का समान है, उन्हां सारिया चीज़ां ते एक पर्टिकुलर टैक्स रेट या टैरिफ लग जाता सी, जिहदे नाल उन्हां दी प्राइस
हाइक हो जाती सी इन द डोमैस्टिक मार्केट। अज भी जो कोई बड़ी बनाई बाहरों इंपोर्टेड कार जे इंपोर्ट करता है तो उत्ते काफ़ी ज़्यादा उन्होंने जोड़ा टैरिफ या ड्यूटी पे करनी पैंदी है, जिसदे नाल उहदी प्राइस रेस कर जाती है। सो दिस वर द टू वेज हाउ द गवर्नमेंट ट्राई टू प्रोटेक्ट द डोमैस्टिक इंडस्ट्री। नाउ इंपोर्ट सबस्टिट्यूशन का सब तो मेन बड़ा कारण की सी इनू अप्लाई करना, दैट वाज द प्रोटेक्शन ऑफ डोमैस्टिक इंडस्ट्री। जदों इंडिया आज़ाद होया we don't have a big industrial base. साडियां इंडस्ट्रीज अजे अर्ली स्टेज ते सन, अजे they were born, they would need a protection like a little baby. So इन्हां नूं प्रोटैक्शन देण वास्ते सरकार ने इस पॉलिसी नूं अपनाया कि असी वो चीज़ां जिहड़ियां बाहरों मंगवा रहे हैं असी उन्होंने अपने घर दे विच प्रोड्यूस करांगे। इहदे नाल जिहड़ी साडी डोमैस्टिक इंडस्ट्री है ये कोटां ते टैरिफ लगण नाल साडी जिहड़ी डोमैस्टिक इंडस्ट्री है वो प्रोटैक्ट हो जाएगी, उन्होंने फॉरेन कंपटीशन फेस नहीं करना पेगा। क्योंकि जिहड़ियां डिवेलप कंट्रीज़ ने जिहड़ियां चीज़ां बना रहे हैं वो डिवेलप ने, अच्छियां ने, बैटर क्वालिटी दे ने, उन्होंने प्राइस घट ने, तो साडियां चीज़ां उन्होंने कंपीट नहीं कर सकियां सन। पर इस चीज़ को असी बिफोर इंडिपेंडेंस एक्सपीरियंस कर चुके सी कि इंडिया का जिहड़ा कॉटन टैक्सटाइल सी वो उन्ना जिहड़ा ब्रिटिश का मशीन मेड माल सी उहदे नाल वो कंपीट नहीं कर पा रहा सी। सो उसे करके देयर वाज नीड टू प्रोटेक्ट द डोमैस्टिक इंडस्ट्रीज थ्रू कोटास एंड टैरिफ्स। इहदे नाल ये सी कि डोमैस्टिक इंडस्ट्री नूं तब तक असी प्रोटेक्ट करना है जब तक वो सेल्फ सस्टेन नहीं हो जाती, वो कंपटीशन फेस करन जोगियां नहीं हो जाती या उस क्वालिटी के प्रोडक्ट्स नहीं बना सकदियां जिहदे नाल ये चीज़ां कंपीट कर सकन। ते इहदे नाल सी कि जिहड़ा रीज़न इहदे नाल जिहड़ा फायदा होया इस प्रोटेक्शन देण नाल या इहदे पिछे जिहड़ा रीज़न सी वो उही 3 रीज़न सन जो इन फॉरेन ट्रेड दे नाल गवर्नमेंट नूं मिलने सन। ओहदा इस पॉलिसी का सब तो वड्डा सी कि इंडिया का अपना इंडस्ट्रीयल बेस तैयार होया, चाहे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, चाहे चाइनीज़ इंडस्ट्रीज़, चाहे लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़, चाहे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़, ये उदों ही एग्जिस्ट कीतियां जदों असी अपनी कंट्री नूं बाहर दी कंट्री दी चीज़ां तो प्रोटेक्ट किया ते इंडिया का इंडस्ट्रीयल बेस बहुत हद तक डिवेलप हो गया। दूजा, इंडिया का बैलेंस ऑफ ट्रेड कभी भी पॉजिटिव नहीं सी, इट वॉज नैगेटिव, इट वॉज गोइंग एडवर्स। ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा सी। ट्रेड डेफिसिट मतलब जदों तुहाडा इस किसी कंट्री का इंपोर्ट ਉਹਦੇ एक्सपोर्ट ਨਾਲ बहुत ज़्यादा ਹੁੰਦਾ है, दैट इज़ नोन एज ट्रेड डेफिसिट एंड दैट डेफिसिट वाज क्वाइट हाई। तो ਉਹਨੂੰ रिड्यूस करने ਲਈ we restricted imports and with this restriction we able to save foreign exchange so we can buy those goods which were required for the development of our country. So अपनी country ਦੀ development वास्ते we need to cover up this. Next इस चीज़ ने एक इंडिया की जिहड़ी सब तो वड्डी प्रॉब्लम सी उन्होंने सॉल्व किया, दैट वाज द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट विद द मोर बेटर इंडस्ट्रीयल डिवेलपमेंट। जिहड़ा एग्रीकल्चर का सरप्लस लेबर सी वो कंज्यूम हो गया, इंडस्ट्री दे विच कंज्यूम हो गया, ਉਹਦੇ ਨਾਲ इंडस्ट्रीज़ ਨੂੰ ज़्यादा फायदा मिलिया एज वैल एज जिहड़ा लोकां ਨੂੰ जॉब्स मिलिया। तो ਜਦੋਂ जॉब्स मिलणगियां ऑटोमैटिकली द कंट्री विल प्रोग्रेस। सो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। लेकिन ਇਹਦੇ ਨਾਲ कुछ चीज़ां ਇਹ भी सी कि ਅਸੀਂ अपने एक्सपोर्ट सैक्टर ਵੱਲ ਧਿਆन नहीं देना। इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी के ऑपोजिट होंदी है आउटवर्ड लुकिंग पॉलिसी। आउटवर्ड लुकिंग पॉलिसी मतलब ਅਸੀਂ उस चीज़ां ਦੀ प्रोडक्शन ज़्यादा करते हैं ਜਿਹੜੀਆਂ चीज़ां ਅਸੀਂ बाहर सैल करनियां ने, एक्सपोर्ट करनियां। So we are more inclined to production of those goods which we can sell abroad instead of saving foreign exchange, we earn foreign exchange. क्योंकि जब import नहीं करोगे तुसी foreign exchange save करोगे, तो जब तुसी export ज़्यादा करोगे तुसी foreign exchange earn करोगे। So असी earning वाल ध्यान नहीं दिता, saving वाल ध्यान दिता, असी export sector को develop नहीं कर सके। दूसरी गल
ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੋਟਾ ਲਗਾਇਆ, ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਇਸ ਆਫ ਗੁੱਡ ਸੀ ਉਹ ਘਟ ਗਈ। ਤੀਸਰਾ, ਕੋਟਾ ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਜੋ ਬਾਹਰੋਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਜਾਂ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲਸ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਉਨੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਇੰਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕੁਝ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਉਨੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਥੀਸ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਕੋਟਾ on the industrial sector to support the policy of import substitution. But in the initial year, this restrictions was very important. अगर restriction ना होंदे ते शायद साडा industrial development ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ stand up नहीं ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ इन्ना 50 years ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। But ultimately in 1990 government has to change this policy. In 1990 ਇਸ policy ਨੂੰ reverse ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ change ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ we will discuss in the next chapter. So till now this was all about the foreign trade policy adopted by the government of India from 1950 till 1990 or till the 7th 5-year plan of India.